Now, today we will discuss orbit and orbital. Orbit is a fixed circular path around the nucleus in which electron revolves, that is proposed by Bohr. So orbit is a fixed circular path around the nucleus in which electrons are revolve, and that is proposed by Bohr. Whereas orbital is the quantum mechanical concept. Orbit is the concept from Bohr and orbital is the quantum mechanical concept and refers to the wave function. So orbital refers to the wave function. It means it has no defined boundary. So according to Heisenberg uncertainty principle, ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, the accurate position of an electron is something that cannot be determined. We cannot be determine the exact position and momentum of electron simultaneously. This is where the concept of orbital comes in. So Heisenberg uncertainty principle के बाद क्या जनरेट हुआ? ऑर्बिटल का कंसेप्ट. क्या जनरेट हुआ? ऑर्बिटल का कंसेप्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ, बट according to Heisenberg uncertainty principle, he says that the exact position of electron cannot be determined accurately. So किसका जन्म हो गया स्टूडेंट? ऑर्बिटल का. So ऑर्बिटल का कंसेप्ट comes in. So this is the orbital. It means this electron has no fixed position and this is a orbital. Electrons are revolve around the nucleus in fixed circular paths, but according to orbital, the exact position of electron cannot be determined. So what is the definition of orbital? And also orbit is a two-dimensional shape. This is a two-dimensional. This is only a circular path, but student, this is not a circular path. This is a space, just like a sphere, just like a sphere. So it is a three-dimensional shape. So orbitals have three-dimensional shape and orbit has a two-dimensional shape. It is only a planar in nature, circular path. This is a circle and this is a spherical. It means orbital is three-dimensional in nature. Now, according to Heisenberg uncertainty principle, exact position of electron cannot be determined. So that's what introduce us to the orbital. So किसका concept generate हुआ? Orbital का. An orbital is an uncertain area that shows the maximum possibility of finding an electron there. So student, orbital क्या है? Orbital is that area where the probability to find the electron is maximum. Means हमें exact position तो पता नहीं है इलेक्ट्रॉन की. फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट. अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 95% प्रोबेबिलिटी यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की है, तो दिस स्पेस, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, दिस स्पेस इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल. सो ऑर्बिटल इज दैट स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. It means it is a three-dimensional space around the nucleus that represents the orbital. For example, this one is electron is there. So this is whole space. This is whole space, three-dimensional space, that is called a orbital. So orbital is the three-dimensional space around the nucleus that represents the orbital. So orbital possess various kinds of shapes. Students, जी आगे पढ़ेंगे orbitals की shapes, different orbitals की different shapes होती हैं. So orbital is the three-dimensional space around the nucleus in which probability of finding an electron is maximum. To say 95% means we are 95%, approximately 95% confident that electron is present there. So this is in accordance with the, ये थोड़ी मैं दी थी क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ द एटम ने. सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम. क्या डेफिनेशन आई? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, ऑर्बिटल इज द three-dimensional space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum. For example, student, आपका
दिस इज ए न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इज देयर, हम एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता है स्टूडेंट, इसके अराउंड थ्री डिमेंशनल स्पेस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस, ये जो स्पेस है इलेक्ट्रॉन के अराउंड थ्री डिमेंशनल स्पेस जस्ट लाइक ए स्फीयर, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन के अराउंड जितना जहां तक इसका इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का जहां तक इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो हमें क्या हो सकता है पता नहीं है पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहां पे लग रही है, तो समझ लो यहां तक इसका इफेक्ट है, यहां तक इसका इफेक्ट है मींस इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां तक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इफेक्ट। सो जहां तक इसका इफेक्ट होगा, यहां पे है, यहां पे है, नीचे है, ऊपर है, जेड एक्सिस पे है, आगे है, पीछे है, जहां तक इसका इफेक्ट होगा दैट स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हमें एग्जैक्ट इसकी पोजीशन नहीं पता, तो जहां तक इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जाएगा, जहां तक इसका इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा, वी कैन से अप टू 95% कि हाँ यहां तक इसका इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। सो दैट स्पेस जहां तक इस आपके इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल इज द थ्री डिमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which probability we are not sure, probability of finding electron is maximum to 95%. so we are confident 95% की इलेक्ट्रॉन के वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस स्पेस को जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अराउंड, अब इसके अराउंड जितनी भी स्पेस है थ्री डिमेंशनल स्पेस, ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर जगह उस स्पेस को, फुल स्पेस को हमने क्या कह दिया, ऑर्बिटल। क्या कह दिया, ऑर्बिटल। और अकॉर्डिंग टू बोहर क्या था, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, लेकिन ये थ्योरी स्टूडेंट बाद में क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। सो तभी ये आपके ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज ए ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, so next difference between orbit and orbital. So orbit is a well defined circular path around the nucleus in which electrons revolve according to Bohr model of atom, and orbital is a three dimensional space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum, and this is in accordance with the quantum mechanical model of atom. फिर से स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, ये आपके अब बहुत तगड़े कंसेप्ट जनरेट होने शुरू हो गए हैं। ऑर्बिटल स्टूडेंट, ये 95% बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट और ऑर्बिटल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पहली थ्योरी थी बोहर की, लेकिन अब क्या आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, इस इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज अ चार्ज पार्टिकल, सुन जैसे आप कोई डीओ लगाते हो, ठीक है, उस डीओ का इफेक्ट जहां तक होगा, तो उस स्पेस को क्या बोल दिया, फॉर एग्जांपल हमने ऑर्बिटल। मैं आपको एक अब सिंपल लैंग्वेज में लेमन आपको लैंग्वेज में समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कोई डीओ लगाया है, तो उस डीओ का इफेक्ट होगा, उसकी स्मेल आएगी कहीं ना कहीं, तो उस स्मेल को हमने क्या बोल दिया है, जहां तक उसका इफेक्ट है क्या बोल दिया है, ऑर्बिटल। सो फॉर एग्जांपल ये आपका इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मतलब इसका क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा, जहां तक इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट जो डीओ लगाया है किसी पर्सन ने, ये तो है नहीं कि स्मेल उसकी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आ रही है, स्टूडेंट उसकी स्मेल ऊपर भी आएगी, नीचे भी आएगी, आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कहां है, चारों तरफ है, इन स्पेस है। तो इस स्पेस को, पूरी की पूरी थ्री डिमेंशनल स्पेस को, जहां तक इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, इस चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट है, उसको हमने क्या कह दिया, ऑर्बिटल। सो वी कैन से अप्रोक्सीमेटली से कि इलेक्ट्रॉन आपका इन्हीं यहीं कहीं किसी रीजन में है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने डीओ लगाया, अब आपको नहीं पता कि वो पर्सन कहां पे है, लेकिन आपको क्या नजर आपको क्या पता चल रहा है, उसकी स्मेल, तो आपको ये पता चल गया कि कोई ना कोई पर्सन है यहां पे जिसने कोई डीओ लगाया हुआ है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट यहीं कहीं तक है, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं है, जहां तक इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा, प्रेजेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्बिटल।
So orbital is a three-dimensional space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum. So an orbit can accommodate maximum 2n square electrons, where n represents the number of orbit. For example, आपका first orbit 2n square 2 1 square. So first orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्टूडेंट? 2. फॉर एग्जाम्पल आपका सेकेंड ऑर्बिट आ गया, सेकेंड शेल आ गई, 2 इंटू 2 स्क्र 8. थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट 2 इंटू 3 स्क्र 18. सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन. सो एन ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्र इलेक्ट्रॉन्स, बट स्टूडेंट ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ऑर्बिटल में स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे? ओनली 2. ठीक है स्टूडेंट. एंड रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. स्टूडेंट जी मैंने आपको पहले बोल दिया, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि ऑर्बिट बोर ने कहा था कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन सर्कुलर पाथ्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग ये कॉन्सेप्ट गलत था. तो ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्या अगेंस्ट है. एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया इस प्रिंसिपल के बाद था. ऑर्बिट्स आर सर्कुलर बट ऑर्बिटल्स के हैं आपके थ्री डिमेंशनल स्पेस. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्टूडेंट अब चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, अब स्टूडेंट उसकी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी. मैंने कहा उस चार्ज का कहीं ना कहीं क्या होगा? इफेक्ट होगा. जहां तक इसका इफेक्ट होगा, ये सारी बाउंड्री, ये सारी स्पेस जहां तक इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा इन थ्री डिमेंशंस, तो उसको क्या बोल दिया? ऑर्बिटल. क्या बोल दिया? ऑर्बिटल. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लाउड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट. दिस गिव्स देम डिफरेंट शेप्स. अब स्टूडेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की वो क्या है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट है. इट मीन्स जो ऑर्बिटल्स की शेप है वो भी क्या है? डिफरेंट है. सो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो क्या है? डिफरेंट. तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल की शेप क्या है? डिफरेंट. ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे स्टूडेंट. ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल. उन्होंने कहा था बोर ने कि ये फिक्स्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दे आर नॉन डायरेक्शनल. एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल. स्टूडेंट आपके ऑर्बिटल हैं, हमने 4 ऑर्बिटल स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, एस पी डी एंड एफ. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये हम बाद में स्टडी करेंगे. सो कह रहे हैं एस ऑर्बिटल को छोड़ के ऑल अदर ऑर्बिटल्स मीन्स पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. स्टूडेंट ये नाम है ऑर्बिटल्स के, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. सो एस ऑर्बिटल को छोड़ के पी डी एफ ऑर्बिटल्स की क्या है? डायरेक्शनल. दे आर डायरेक्शनल इन नेचर मीन्स उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्लाउड है वो फिक्स डायरेक्शन में होगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कहाँ पे होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. सो नेक्स्ट, क्वांटम नंबर्स. The set of numbers used to describe the position and energy of electron in an atom are called quantum numbers. स्टूडेंट ये आपके 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीम्यूचुअल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स. इन चारों क्वांटम नंबर से हम 95% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमें पोजीशन और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पता चल जाएगी. सो ये चारों क्वांटम नंबर्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ठीक है स्टूडेंट. सो क्वांटम नंबर्स कितने तरह के स्टूडेंट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. एंड दीज क्वांटम नंबर हमें क्या बताएंगे? पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एन के साथ. Principal quantum numbers are denoted by symbol n. They designate the principal electron shell of the atom. Student ये हम जो principal quantum number है ये हमें क्या बताता है कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो प्रिंसिपल शेल है, मेन शेल है, वो कौन सी है? फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, कौन सी है? सिंस द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट. इससे हमें ये भी पता चल जाएगा probable. We are not confident, 100% not confident. We are in probable. So most probable distance
between the nucleus and the electrons is described by this quantum number. So distance between nucleus and electron, इस क्वांटम नंबर से हमें यह भी पता चल जाएगा, बट वी आर नॉट श्योर, मोस्ट प्रोबेबल मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि इसका डिस्टेंस कितना है. Larger value of principal quantum number implies a greater distance between the electron and the nucleus, which in turn implies greater atomic size. For example, ये आपका first orbit, this one is second orbit, this one is third orbit. So this is the first, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. So these are represented by in integers 1, 2, 3. सो अब इसका डिस्टेंस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा आ गया. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एक तो हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और डिस्टेंस हमें क्या पता चलेगा, एटॉमिक साइज. जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी एनी इंटीजर विद ए पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स n की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है आपने, 1 से, विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. सो स्टार्टिंग कहां से करनी है, 1 से. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 क्या डिनोट कर रहा है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ द एटम, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए न्यूक्लियस, दिस इज ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल, एंड दिस इज द इनर मोस्ट और ग्राउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका, 2n². ये कैसे आया ये बाद में पता चलेगा आपको, अभी आप याद कर लो. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल कितने हैं, 2n². फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, 2. सेकंड शेल में कितने आ गए, 8. थर्ड शेल में कितने आ गए आपके, 18. फोर्थ शेल में कितने आ गए, फोर्थ शेल में 32, एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल आपका 3D ऑर्बिटल, ये हम आपको 3D कैसे आया ये बाद में पता चलेगा. यहाँ पे आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल 3D ऑर्बिटल कौन सी शेल है स्टूडेंट आपकी, थर्ड शेल. D ऑर्बिटल है, थर्ड शेल, वी आर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18. सो फॉर एग्जाम्पल क्या, 3D ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पे, 3. ठीक है स्टूडेंट. सो ये 3D में जो ये 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है स्टूडेंट. D आपका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाद में पढ़ेंगे SPDF ऑर्बिटल्स. यहाँ पे हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आपका 3D ऑर्बिटल है, इसमें जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल. मतलब मीन यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना आया, 3. ठीक है स्टूडेंट. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ये किसने हमें दिया था, बोहर्स ने. दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर एंड डिनोटेड बाय n. इट डिटरमिन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट. रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, 0.53 n² बाय z आंगस्ट्रॉम. सो स्टूडेंट यहाँ पे n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हमें n पता चल जाए और एटम कौन सा है आपका, z पता चल जाए, तो हम ये एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट. अब जितना जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाएगा तो ये आपका रेडियस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा. तो क्या पता चल गया, पोजीशन. सेकंड, एनर्जी, ये भी आप पढ़ चुके हो. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल क्या फार्मूला था, -1312 z² किलो जूल पर मोल. यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और -2.18 इंटू 10⁻18 z² जूल पर एटम. दीज आर डिफरेंट यूनिट्स. सो यहाँ पे जो n² है, n है जो, वो क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हमें ये n पता चल जाए तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन. और ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल कितने हैं, 2n². एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स पोजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी एनर्जी शेल ऐसी नहीं है सो जिसके 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो. मीन्स आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 32. कितने हैं, 32. और इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट K, L, M एंड N. ये हम पढ़ चुके हैं. N इज इक्वल टू 1, 2, 3 का क्या मतलब था स्टूडेंट आपका, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन. लग गया पता. हमें शेल्स के बारे में पता चल रहा है, हमें डिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है, हमें एनर्जी के बारे में पता चल रहा है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल के बारे में पता चल रहा है.
सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर माइनस, जैसे जैसे आपका एन बढ़ता जाएगा ये आपका ई नेगेटिव ई कम होता जाएगा। नेगेटिव ई कम होने का मतलब है ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स जैसे 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 आपका ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है स्टूडेंट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज इन फर्स्ट शेल, इन सेकेंड शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। मीन्स एनर्जी ऑफ शेल आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एंड इट रिप्रेजेंट्स द मेजर एनर्जी शेल और ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। हमें ये क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि आपकी जो मेजर एनर्जी शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, मीन्स जो आपकी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में है, मेजर, हमें क्या बताता है, मेजर एनर्जी शेल और ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि इलेक्ट्रॉन आपकी कौन सी शेल को बिलोंग कर रहा है। एंड आल्सो हमें क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें, h आपका कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट, तो हमने क्या निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, आपकी फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजर एनर्जी शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओवर हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, और इसका दूसरा नाम भी है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो एजीमुथुअल क्वांटम नंबर प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड, ये साइंटिस्ट था स्टूडेंट, और दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल एल। अब इट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ सबशेल्स और सब लेवल्स टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। स्टूडेंट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें क्या बताता था, मेन शेल। अब मेन शेल के अंदर फिर से क्या है, सब शेल्स। फॉर एग्जांपल आपकी अलमीरा है, अलमीरा के अंदर क्या है, आपके क्या बने हुए हैं, पार्टीशंस। सो इट मीन्स ये जो आपकी स्पेस थी, ऑर्बिटल था, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा, उसको क्या बोल दिया हमने, ऑर्बिटल। अब इसके अंदर क्या है, पार्टीशनिंग, इसके अंदर क्या है, पार्टीशनिंग। सो मेन शेल के अंदर, मेन शेल के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी ये मेन शेल है, फॉर एग्जांपल थर्ड शेल है, तो इसके अंदर फिर से क्या है, सब लेवल्स, फिर से क्या है, सब लेवल्स, उसको हम सब शेल्स भी बोलते हैं, जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो बाद में देखेंगे। तो हमें ये क्या बताता है, हमें ये सब शेल्स बताता है कि एक प्रिंसिपल शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितनी है। प्रिंसिपल शेल तो आपका आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अब उसके अंदर, उस शेल के अंदर फिर से सब शेल्स हैं जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आपकी अलमीरा है, अलमीरा के अंदर फिर से क्या है, पार्टीशन, जिसमें आपके क्या रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं। सो ऐसे ही इट डिटरमिन द नंबर ऑफ सब शेल्स। फॉर एग्जांपल अलमीरा है आपका, उसमें पार्टीशन अलग है, आपके मम्मी का पार्टीशन अलग है, अलमीरा में आपके पापा का पार्टीशन अलग है। ऐसे ही एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन्स के क्या आ गई, सब शेल्स, जहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें क्या बताता है, कौन बताता है, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। इट डिटरमिन द नंबर ऑफ सब शेल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट ये वाला, इट डिटरमिन द नंबर ऑफ सब शेल्स और सब लेवल्स टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो है, ये मतलब मेन शेल में है। अब मेन शेल में वो कौन सी सब शेल में है, कौन से पार्टीशन में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, वो हमें कौन बनाता है, हमें बताता है एल। एजीमुथुअल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है कि जो ये ऑर्बिटल बना, ये अराउंड इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आया, इसकी शेप क्या आई, ये शेप हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी शेप क्या आई, ये हमें शेप भी बताता है। इट मींस एल से हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ सब शेल्स, कि एक मेन शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स और सब लेवल्स कितने हैं।
मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जो है, अब आपकी अलमीरा है, अलमीरा के अंदर क्या है, पार्टीशंस। यहां पे आपके क्लोथ्स हैं, या आपकी मम्मी की आ गई पार्टीशनिंग, या आपकी मम्मी के क्लोथ्स हैं, या आपके पापा के क्लोथ्स हैं, ऐसे ही अलग अलग क्लोथ्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसमें है, किसी मेन शेल के अंदर क्या है, फिर से पार्टीशनिंग हुई हुई है। उसको क्या बोलते हैं, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। एक तो हमें जो नंबर ऑफ सबशेल्स बताता है, दूसरा हमें क्या बताता है कि जो ऑर्बिटल बना, जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट आया, वो इफेक्ट की शेप क्या है, स्फेरिकल है, डंबल है, कैसी शेप है। एंड वैल्यू ऑफ एल, अब जो वैल्यू मैग्नीट्यूड एल का, वो क्या है, 0 to n-1। क्या है, 0 to n-1। एन आपका वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है स्टूडेंट, 0 to n-1। फॉर एस ऑर्बिटल एल की वैल्यू 0 है। स्टार्ट कहां से करना स्टूडेंट आपने, 0 से। अगर एल आपका 1 है तो क्या आएगा, p ऑर्बिटल। अगर आपका L2 है तो क्या आएगा, d ऑर्बिटल। अगर आपका L3 है तो उसका नाम क्या रख दिया हमने, f ऑर्बिटल। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0 का मतलब है s ऑर्बिटल है, L इज इक्वल टू 1 का मतलब है p ऑर्बिटल है, L इज इक्वल टू 2 का मतलब है d ऑर्बिटल है, L इज इक्वल टू 3 का मतलब है f ऑर्बिटल है। इनकी शेप स्टूडेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि है क्या। With the help of azimuthal quantum number, we can determine the total number of energy sublevels. स्टूडेंट अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेन शेल की बात नहीं कर रहा। अब ये जो सब शेल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी भी क्या, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी सब लेवल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सब लेवल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पापा के कपड़े ज़्यादा हैं, आपके कपड़े कम हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब किसके ऊपर डिपेंड कर गई, सब लेवल के ऊपर भी डिपेंड कर गई कि इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टीशन में है, कौन से सब लेवल में है। इससे हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है। इट आल्सो एक्सप्रेसेस द एनर्जी ऑफ सबशेल्स। अब स्टूडेंट एनर्जी ऑफ सबशेल्स, यहां पे अब सबशेल्स क्या आई, एस पी डी एफ। अब एस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है, ये कैसे है ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, ठीक है स्टूडेंट। और इनकी ये आपकी क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है स्टूडेंट। सो एल हमें क्या पता चला, एक तो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, सबशेल्स कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आएगा, उसकी शेप क्या आएगी, और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी सब लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट। जो सब लेवल्स हैं उनकी भी एनर्जी क्या है, और एनर्जी क्या कर रही है, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स मींस एस पी डी एफ सबशेल्स की एस टू पी, पी टू डी, डी टू एफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो ये आपके सबशेल, एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या है, 0, पी में क्या है 1, डी में क्या है 2, एफ में क्या है, एल की वैल्यू 3। ये डेजिग्नेशन है स्टूडेंट, ठीक है। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। हमें एजीमुथल क्वांटम से क्या पता चला, शेप। ये मैं आपको स्टूडेंट एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ये हमें एग्जैक्ट शेप्स हमें बाद में स्टडी करनी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि एल हमें शेप्स भी बताता है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है स्टूडेंट। ये एस ऑर्बिटल की शेप है, ये पी ऑर्बिटल की शेप है, ये डी ऑर्बिटल की शेप है, ये एफ ऑर्बिटल की शेप है। अब ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया है कि एल हमें क्या बताता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस इज ए स्फीयर, दिस इज ए डम्बेल। स्टूडेंट ये जो ऐसा मैं आपको अभी ये शो कर रहा हूँ रेड कलर का, इसका मतलब है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आपको नज़र आ रही है शेप, इस शेप का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन जो उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने डीओ लाया, अब डीओ जो लगाया हुआ है उसकी खुशबू कैसे फैल रही है, कोई फ्लावर है उसकी खुशबू कैसे फैल रही है स्पेस में, ठीक है स्टूडेंट। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, इफेक्ट। दिस इज नॉट एक्चुअल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा उसका इफेक्ट क्या आया, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की डंबल है, एस ऑर्बिटल में इफेक्ट क्या होगा, जस्ट लाइक बॉल, स्फीयर,
चारों तरफ। एस ऑर्बिटल में जो उसका इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, चारों तरफ इन 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनली सारे, लेकिन शेप्स क्या डिफरेंट डिफरेंट। सो एस ऑर्बिटल की जो शेप आई वो क्या आई, स्फेरिकल सिमेट्रिकल जस्ट लाइक बॉल। मींस जो चार्ज का इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं है, इलेक्ट्रॉन है यहीं कहीं, लेकिन ये सारा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आ गया। और इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल। क्या बोल दिया, ऑर्बिटल। एंड orbitals have different shapes. S orbital have spherical symmetrical, p orbital have dumbbell shape, d orbital and f orbital have complex shape। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप फिलहाल देख लो। और इस ऑर्बिटल का मैं ध्यान से समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपको 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होता ये है क्या। ये जो मैं आपको अभी ड्रा कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैसे है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसका इफेक्ट कैसे है, जो मैं अभी ये शेड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ स्पेस में, कोई चीज है वो स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है स्टूडेंट, और कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये हमें क्या बताता है, शेप। ये हमें क्या बताता है, शेप। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनकी शेप्स हैं। सो एज एल से एजीमुथल कार्ड नंबर में क्या पता चला, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये शेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक था एंगुलर मोमेंटम, अब क्या आ गया, ऑर्बिटल। मींस जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो बॉल जस्ट लाइक बॉल, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब उसका इफेक्ट क्या है, इन 3 डायमेंशन, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अब इसका कोई ना कोई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये स्पेस में इसका इफेक्ट है। इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आपका स्टैटिक तो है नहीं, ये जो इफेक्ट है वो भी क्या कर रहा है स्टूडेंट, वो भी स्टैटिक नहीं है, वो भी स्टैटिक नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस जो रिवॉल्व करते करते जो इसका इफेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने डीओ लगाया, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो कमरे में मूव कर रहा है, तो स्मेल भी क्या कर रही है, कमरे में मूव करेगी। ऐसे स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन ये तो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अगर ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, तो स्टूडेंट इसका जो इफेक्ट होगा साथ साथ वो भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। वो भी क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट समझ लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट भी यहां पे आ गया। इट मींस इसका इफेक्ट भी क्या कर रहा है, साथ साथ रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑर्बिटल है, पहले इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहां पे था, तो इसका इफेक्ट यहां पे था। अब पर्सन ने डीओ लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल पहले वो किसी और रूम में था, बाद में किसी और रूम में चला गया, अब स्मेल भी क्या हो गई, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई है, तो स्टूडेंट जो उसका इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज का इफेक्ट है, जिसको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं, वो भी क्या कर रहा है स्टूडेंट, शिफ्ट कर रहा है। वो भी शिफ्ट कर गया, ये इफेक्ट शिफ्ट कर गया। इसका मतलब इसका कोई ना कोई क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। इट मींस इसकी कोई ना कोई क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट, h/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। अगर हमें l की वैल्यू पता चल जाए, तो हम उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपके सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे याद कर लो। दिस इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, क्या फार्मूला है, 2 इंटू 2l प्लस 1। क्या फार्मूला है, अब सब शेल की बात चल रही है स्टूडेंट, मेन शेल नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रॉन है, ये मेन शेल है, ये क्या है, सब शेल्स, ये क्या है, सब शेल्स। अब इन सब शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके कपड़े हैं, ये आपके कपड़े हैं, या आपकी मम्मी के कपड़े हैं, या आपके पापा के कपड़े हैं। आपके कितने कपड़े हैं, आपकी मम्मी के कितने कपड़े हैं, आपके पापा के कितने कपड़े हैं। ऐसे ही किसी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसका क्या फार्मूला है, 2 इंटू 2l प्लस 1। अगर हमें एल की वैल्यू पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल एल ऑर्बिटल में, सॉरी एल इज इक्वल टू 0 मीन्स एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होगी, 0, तो क्या आ जाना है 2, 0 प्लस 1 2। तो एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2।
पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 6। सो पी ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको फिर से करके बता देता हूं। एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल एल की वैल्यू क्या होगी 0, फार्मूला क्या था आपका 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, क्या आंसर आ गया 2। सो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 2। अब पी, फॉर पी ऑर्बिटल एल की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पुट करो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितने आ गए 6। सो पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6। डी, फॉर डी ऑर्बिटल की एल की वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने आ गए 10। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितने आ गए 14। सो एस ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, पी ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल डी सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ठीक है, ये सबशेल्स हैं, ये क्या हैं सबशेल्स, एस पी डी एंड एफ। ठीक है स्टूडेंट। सो एस सबशेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, पी सबशेल कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स बाय कौन सा फार्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल इज 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट। एंड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। टोटल वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। स्टूडेंट ये बाद में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एंड एल बिकॉज टोटल एनर्जी। स्टूडेंट अब जो मैंने अभी कहा आपको, अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट वो खाली प्रिंसिपल शेल के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, आगे जो पार्टीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टीशंस में हैं। इसका मतलब मेन पार्ट आपका शेल क्या है एन, उसके अंदर जो पार्टीशंस हैं वो क्या है एल। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, एन और एल के ऊपर, और एनर्जी डिपेंड कर रही है एन एंड एल के ऊपर। एन प्लस एल, जिस इलेक्ट्रॉन का एन प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी स्टूडेंट उसकी एनर्जी भी क्या होगी ज़्यादा होगी। इट मीन्स आपका जो एन प्लस एल है इस समय क्या पता चलेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल एनर्जी शेल एंड सब शेल्स, कि वो कौन सी सब शेल में है। और जिस इलेक्ट्रॉन का एन प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन दैट सब शेल whose n plus l value or the value of n energy is less. Always electrons, for example स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहा है उस सबशेल में एंटर करेंगे सबसे पहले जिनकी एनर्जी क्या होगी कम। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट में आने के बाद ये कौन से पार्टीशन में गया है, ये कौन से पार्टीशन में गया है, ये आपका सेकंड है, सेकंड प्रिंसिपल शेल है। ये क्या आगे पार्टीशंस आगे। अब कौन से पार्टीशन में पहले गया है स्टूडेंट, सबसे पहले कौन से पार्टीशन में जाएगा जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या होगी कम। सो लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिस इलेक्ट्रॉन की n प्लस एल वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में एंटर करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स आगे एंटर होता जाएगा। इट मीन सबसे पहले वो कौन सी शेल में एंटर करेगा फर्स्ट शेल में, फिर किस में एंटर करेगा सेकंड शेल में। तो अब शेल में तो एंटर कर गया, अब शेल के कौन से पार्टीशन में एंटर करेगा वो एल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जिस इलेक्ट्रॉन की n प्लस एल वैल्यू लोअर होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां पे एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिस इलेक्ट्रॉन्स की सबशेल्स हैं 3-4 सबशेल्स हैं, अब
जिस सबशेल की n+l वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही एंटर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इन दैट सबशेल वेयर n+l वैल्यू इज स्मॉल। स्टूडेंट अब क्या आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। और स्टूडेंट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये अभी आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी पड़ा हुआ है, सो सारा एक ही बार में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। So magnetic quantum number will discuss in next lecture. Thanks.